मोर का मतलब क्या है? यू आर मोर जो है ये पूरे यूनिवर्स की पुकार है। ये पूरे यूनिवर्स में से जो साउंड आता है ना, वो आता है यू आर मोर, बिकॉज वी आर born with this intention that you are more. Today universe supports only those people, universe supports only those people who vibrate with this intention you are more. जैसे स्टैग्नेंट पानी जो है वो सड़ जाता है, बदबू मारने लग जाता है, वैसे ही यूनिवर्स wants you to constantly evolve to you are more. जो हमने महाभारत में देखा था, जो कृष्ण जी ने अपना विराट स्वरूप दिखाया था, जो उन्होंने अपना विराट स्वरूप दिखाया कि मैं ये भी हूँ, ये भी हूँ, मैं राम भी हूँ, मैं शिव भी हूँ, मैं पाताल भी हूँ, मैं आकाश भी हूँ. It was basically to show that is the magnificence of creation. Creation कितना magnificent है. And universe only supports people who work towards evolving themselves more and more. Today every person is born with a specific intention. हर person एक specific creativity के लिए he is born, and for that creativity you have to vibrate with this intention you are more. आज इंसान जो है कभी भी satisfied नहीं होता, कभी भी satisfied नहीं. आज अगर वो आंखों से एक पर्टिकुलर दूरी से देख सकता है तो he will invent a binocular. आज अगर वो एक स्पीड से भाग सकता है, after that he will invent a car, he will invent a helicopter, supersonic jet, because he doesn't want to be limited in anything. वो अपने हाथ से एक पर्टिकुलर काम ही कर सकता है. He will invent machines. अब वो क्या है, वो दिमाग से रियलाइज करता है कि मैं एक पर्टिकुलर स्पीड पे ही सोच सकता हूँ और कैलकुलेशन कर सकता हूँ. So he invented computers, calculators. So today we don't want to be limited in anything. Yes or no? The human being is a very complex machine, but we don't want to be limited just because of our boundaries. We use this complex machine to realize you are more. To realize that you are more, we invent different things. Whether it is in music, whether it is in arts. Today we are not limited to only paintings done by hand. We can do paintings through computers also. For everything we have invented machines so that we can do our work much better, much evolved, much faster, and in every way much more magnificent. So today what stops you from realizing you are more? आज आपके अंदर क्या ब्लॉक्स हैं जिसके कारण यू आर नॉट एबल टू रियलाइज कि आई एम मोर? कहां पर यू फील स्टक, कहां पर यू फील ब्लॉक? एवरी पर्सन हैज गॉट different blocks, and these blocks settle in your 7 चक्र. आपके बॉडी में 7 चक्र हैं और ये 7 चक्र जो है ये आपके 7 डायमेंशंस हैं, और आपके जो भी फियर्स हैं और जो भी ब्लॉक्स हैं they get stuck up in the 7 चक्र. और जैसे कोई चीज स्टक होती है तो उसको कैसे क्लियर करते हैं? पुश करके. यस और नो? पर पुश करने के लिए यू शुड नो कि ब्लॉक क्या है. यू जस्ट कांट से आई पुश इट. You should be able to look at the block. You should be able to be ready that I want the block to be pushed out, and then you have to push the block. अगर आपने ब्लॉक को देखा नहीं तो आप ब्लॉक को रिलीज नहीं कर सकते. तो हमारे 7 चक्र में 7 अलग अलग टाइप के ब्लॉक्स हैं जिनको हमें देखना पड़ता है और रिलीज करना पड़ता है टू रियलाइज योर ट्रू पोटेंशियल. आपको कोई चीज सीखनी नहीं है, आपको केवल रिलीज करना है व्हाट यू थिंक यू आर. जिस दिन आप रिलीज करोगे आप रियलाइज ऑटोमेटिकली करोगे. जैसे आपको प्यार करना नहीं सीखना है, यू हैव टू रिलीज द फियर. यस और नो? द मोमेंट यू रिलीज द फियर, आपका नेचुरल स्टेट क्या है? लव. डू यू हैव टू लर्न हाउ टू बी ब्रेव? Do you have to learn how to be brave? Be brave, be brave. You have to learn? No. You have to look at the cowardice inside you. कि मेरे अंदर क्या कमजोरी है, मेरे अंदर क्या cowardice है. और जब आप वो cowardice को देखोगे, उसको realize करोगे, automatically you will be brave. Do you have to realize that you are hard working? क्या आपको hard work करना सीखना है? No. You have to look at your laziness, अपना आलस, अपना fear of work,
आपको अपना डर का जो डर है, फियर ऑफ वर्क है, उसको यू हैव टू सी एंड यू हैव टू रिलीज इट, ऑटोमेटिकली यू विल बिकम हार्ड वर्किंग। बिकॉज ये आपका नेचुरल ट्रेट है, नेचुरल ट्रेट है। योर नेचुरल ट्रेट इज बीइंग पावरफुल, being in any way, in all the positive qualities that are already inside you. You just have to look at the negative qualities और उनको बोलो, release करो, and automatically the positive qualities are in you. Everyone agrees to this or not? Doesn't it make things simple for us? जब आप सोचोगे मुझे सीखना है, कुछ भी नहीं सीखना है, आपको केवल अनलर्न करना है जो आपने गलत सीखा है। पर ये आपने गलत सीखा है कि वर्क इज वेरी हार्ड, पीपल कैन नॉट बी ट्रस्टेड, आई एम नॉट गुड इनफ। ये सारी चीजें आपने गलत सीखी हैं। पर ये सीखी कहां से है? फ्रॉम वेयर हैव दे कम इनसाइड यू? फ्रॉम वेयर ऑल दीज लिमिटेशंस एंड फियर्स हैव कम इनसाइड यू? यस, पास्ट एक्सपीरियंसेस। यस, आपके लाइफ के जो पास्ट एक्सपीरियंसेस थे, जब आप लाइफ में बड़े हो रहे थे, you were not able to maybe perform good in your school or somewhere out of competition you lost, तो आपके अंदर fear आ गया कि somewhere I am not good enough, or somewhere you started doubting yourself, doubting your abilities. But doubting abilities करके तो you cannot become better. Yes or no? By doubting yourself you can't go ahead. How will you go ahead? You have to first release this self-doubt, right? When you release the self-doubt, you will develop the intelligence to see how can I do it correctly. You have to understand every person is not meant for everything. आप ये भी सीखो। Today अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं कर पाए, maybe you are not meant for sports. हर पर्सन की अपनी यूनिक क्वालिटी है, yes or no? आज स्कूल में some people don't perform well, क्योंकि उनका इंक्लिनेशन आर्ट्स की तरफ होता है, उनका इंक्लिनेशन अलग होता है। So why you have to doubt yourself? You cannot be like the next person near you. Yes or no? जब हम स्कूल में when you are growing up in life, it's often that parents compare you with others, you compare yourself with peers, and you develop this kind of self-doubt कि जब ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? But understand, you are different. Yes, you are different. आज अगर कोई भी सक्सेसफुल पर्सन को ले लो, आज सचिन तेंदुलकर को बोल दो कि भाई यू डू सम टेक्नोलॉजी वर्क, यू टेल लता मंगेशकर भाई व्हाई डोंट यू गो इनटू सम काइंड ऑफ कॉर्पोरेट इंडस्ट्री, यू टेल दीस पीपल टू डू डिफरेंट वर्क, विल दे बी एबल टू डू? सो लाइफ इज अबाउट रियलाइजिंग दैट यू हैव गॉट अ यूनिक टैलेंट एंड यू कांट बी द बेस्ट इन एवरीथिंग, बट यू विल बी द बेस्ट इन व्हाट यू आर मेड फॉर। आज यू आर मेड अप ऑफ 4 कॉन्शियसनेस। एक आपकी बाहर क्या है? बॉडी। उसके अंदर क्या है? माइंड। उसके अंदर क्या है? सेंसेस। और सबसे अंदर होता है आपका। इन इनिशियल एवोल्यूशन, जैसे जैसे आप लाइफ सीखते जाते हो, यू आर अलाइन टू योर बॉडी, यू आर ओनली कंसर्न विथ योर सर्वाइवल नीड्स। मेरा खाना पीना हो जाए, मेरे बच्चे अच्छा करें, वी आर हेल्दी, मेरे आसपास के सब कुछ ठीक रहे, यू आर ओनली कंसर्न्ड विथ योर बॉडी। देयर आर मेनी पीपल हु लिव प्योरली इन बॉडी कॉन्शियसनेस, दे आर ओनली कंसर्न्ड विथ द बॉडी। आई शुड बी हेल्दी, मेरे आसपास के बच्चे ठीक होने चाहिए, दैट्स इट, हमारा सर्वाइवल होना चाहिए, वी शुड हैव इनफ फॉर व्हाट वी वांट इन आवर लाइफ, दैट इज लिविंग विथ बॉडी कॉन्शियसनेस। But when you live with body consciousness, you are very limited. आप limited होते हैं, आप अपने परिवार के आगे नहीं देख पाते, and you are constantly in a cycle of pleasure and pain. परिवार वाले सब खुश हैं, सब कुछ ठीक है, you are happy. कहीं पर भी कुछ unstable है, you are sad. और body consciousness वाला जो है, financially he is not that abundant. आप देखो जो भी people who work with the body, right? You see people like laborers, जो भी सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं शरीर से, yes or no? They are not financially that comfortable. They take time to be comfortable.
सेकेंड स्टेज क्या आती है? यू स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ द बॉडी कॉन्शियसनेस. यस, slowly you start aligning with your mind consciousness. Now where body is concerned only with survival, क्योंकि mind कभी मर नहीं सकता, sense कभी मर नहीं सकती, क्योंकि पैदा ही नहीं हुई थी. It doesn't have a tangible existence. Your body is the one which is concerned with food, clothing, shelter. It wants family also for stability. अब क्या होता है? आप body consciousness से बाहर आते हो, आप evolve होते हो, आपकी body की need satisfy हो जाती है. You evolve out of your body consciousness and then you come to your mind consciousness. Now mind consciousness में what happens? You are concerned with the role you are playing, right? You are concerned with grasping more and more knowledge and you are concerned कि मैं क्या role play कर रहा हूँ. Am I a good worker? Am I a good colleague? मेरे ऑफिस के लोग properly काम कर रहे हैं कि नहीं? Your role as a husband, your role as a son, your role as a brother. तो mind consciousness में क्या है? You align to what you are doing. Yes, what you are basically executing with your knowledge. फिर धीरे धीरे आप जब knowledge आपकी complete हो जाती है, अब mind consciousness वाले कौन लोग होते हैं? Leaders, managers, business people, politicians. Second, third level के लोग कौन होते हैं? जो अलाइन होते हैं अपने सेंस कॉन्शियसनेस. Those are people who work with their emotions, feelings. They do what makes them happy, right? So they are all working with emotions. तो धीरे धीरे when आपका रोल, आपका माइंड प्ले कम हो जाता है, you start playing with your senses. सेंसेस में जो टॉप अचीव करते हैं एक्टर्स एक्सेट्रा. एंड लास्टली जब जैसे जैसे आपका एवोल्यूशन हो जाता है, आपका मन सेटिस्फाइड होने लग जाता है कि आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड, यू स्टार्ट लिविंग एज अ सोल कॉन्शियसनेस. आप ये देखते हो कि मैं कौन हूं अंदर से एंड आई वांट टू डू व्हाट आई एम फ्रॉम इनसाइड. और जैसे जैसे आप सोल के साथ कनेक्ट होने लग जाते हो, यू अचीव द मैक्सिमम फेम, मैक्सिमम abundance, you achieve everything in life when you are connected to the soul. और ये gradual होता है, it happens gradually in everybody's life. Initially everyone is concerned कि बस मैं, मेरा परिवार, मेरी health, it is called survival mode. पर जैसे ही आप उससे बाहर आते हो, you come in the mind mode, in the mind consciousness. I should do my role properly, I should be a good worker, I should be a good businessman. जब माइंड से बाहर आते हो, यू एंटर इनटू सेंसेस. आई शुड बी हैप्पी. उसके बाद सर्वाइवल नहीं रह जाता, ज्ञान भी नहीं रह जाता, मेन रह जाता है मेरे को खुश होना चाहिए. आई शुड बी हैप्पी. तो जैसे जैसे आप सेंस कॉन्शियसनेस में आप सेटिस्फाई होने लग जाते हो, आप देखते हो व्हाटएवर मेक्स मी हैप्पी आल्सो मेक्स मी सैड. तो धीरे धीरे आप सेंस से जब आप सेटिस्फाई होने लग जाते हो, यू देन एंटर इनटू द सोल कॉन्शियसनेस. और जैसे आप सोल कॉन्शियसनेस में एंटर हो जाते हो, यू एक्चुअली लिव हू यू आर. और जैसे जैसे आप सोल से कनेक्ट होते हो, आपको सबसे ज्यादा नेम, फेम, सक्सेस, यू गेट एवरीथिंग व्हेन यू लिव एज अ सोल कॉन्शियसनेस. एक्चुअली आई बिलीव दैट यू नो वी लिव मेनी बर्थ्स टू अल्टीमेटली रियलाइज व्हाट वी आर मेड फॉर. हम हर जन्म में अलग अलग शरीर लेते हैं, वो शरीर से हम एक लेवल तक इवॉल्व होते हैं, एक लेवल तक लेसन्स लर्न करते हैं. जब वो लेसन्स इस शरीर में जितने लेसन सीख कर पाते हैं, उसके बाद वी लीव दिस बॉडी, वी टेक अनदर बॉडी. इट्स नॉट नेसेसरी एवरीवन हैज टू इवॉल्व इन दिस बर्थ, बट आपने जो इस जन्म में सीखा है, एक चक्रीय क्लास जो आपने इस जन्म में सीखी है, यू विल बी कैरिंग फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट बर्थ. एक भी आपकी लर्निंग वेस्ट नहीं जाती, इट गोज अलॉन्ग विद इट. क्योंकि आपका जो चित्त है, चित्त इज योर कॉन्शियसनेस. आपका जो चित्त है उसमें सब कुछ स्टोर होता है, जितनी भी आपकी लर्निंग्स हैं वो स्टोर होती है. इवन योर रॉन्ग लर्निंग्स आर स्टोर्ड इन द चित्त. आपने अगर कुछ गलत सीखा है, वो भी चित्त में स्टोर है. आज अगर आपने सीखा है कि आई एम नॉट गुड इनफ, आपने कोई भी गलत भी सीखा है, वो भी चित्त में स्टोर है, वो भी जाएगा. तो इस जन्म में आप अपने चित्त को जितना प्यूरिफाई कर सकते हो उतना प्यूरिफाई करो, क्योंकि उस चित्त के हिसाब से आपको जन्म मिलेगा. यू विल गेट द नेक्स्ट बर्थ एज पर द चित्त. बॉडी कॉन्शियसनेस इज कंसर्न विद अफ्लुएंसी, बट अंडरस्टैंड दैट एक टाइम के बाद जिस दिन आप रिफ्लेक्ट करते हो कि मैं कितना भी अफ्लुएंट हो जाऊं, आई कैन
डबल, आई कैन नॉट, वो मनी मुझे खुशी नहीं दे रहा है। एक समय तक यू विल फील मनी इज गिविंग मी हैप्पीनेस और द मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ माय लाइफ आर गिविंग मी हैप्पीनेस, बट जिस दिन यू स्टार्ट रियलाइजिंग ये मुझे खुशी नहीं दे रहा है, इट्स अ टेम्पररी, खाना देखा, खाना खाया, उस समय खुशी, उसके बाद वही वेट रिडक्शन के लिए भागकर सारी खुशी वेट रिड्यूस करने के लिए निकाल रहे। तो धीरे धीरे यू रियलाइज कि ये प्लेजर एंड पेन ऑफ साइकिल, ये जो साइकिल है प्लेजर एंड पेन की, इट्स टू मच फॉर मी। तो धीरे धीरे यू फाइंड दैट इज नॉट माई ट्रू लव, क्योंकि आपका जो दिल है ना वो तभी खुलता है व्हेन यू लिव योर पैशन, व्हेन यू लिव एज योर सोल कॉन्शियसनेस। आपका दिल तब तक खुलता ही नहीं, यू आर नॉट हैप्पी, यू आर नॉट जॉयस। प्लेजर अलग चीज होती है। आज अगर कोई आपको गुदगुदी मचाए, आप हैप्पी होते हो कि प्लेजर होता है? तो आज ये बॉडी, माइंड और सेंसेस में सब गुदगुदी है, एवरीथिंग इज अ गुदगुदी। आप अच्छा खाना खा लो, अच्छे घर में रह लो, अच्छे कपड़े पहन लो, राइट? पीपल आर जेलस ऑफ यू, पीपल फील यू हैव लॉट ऑफ मनी, यू आर वेरी हैप्पी विद दैट फीलिंग। तो जब आप ये टाइप की फीलिंग में रहते हो, इट इज ओनली गुदगुदी, और एक टाइम के बाद यू गेट टायर्ड, यू से नो आई डोंट वांट दिस, आई वांट दैट ओशन ऑफ ब्लिस इनसाइड, कि आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम जनरली जस्ट हैप्पी। यू रियलाइज दैट these things are not what is giving you the true happiness, but you will realize कि when you follow your soul, this will come पीछे पीछे, everything will come after it। जैसे एक कहानी आई थी कि लक्ष्मी दुर्गा एंड सरस्वती, they come to a person's house, right? and they say कि भाई we only one of us can enter the house। एक पर्सन ने बड़ी प्रेयर की थी, तो only one of us can enter the house। तो वो लोग बड़े कंफ्यूज थे, लक्ष्मी जी को बुला लें पर ज्ञान नहीं आएगा और प्रोटेक्शन नहीं आएगा, दुर्गा जी को बुला लें, किसको बुलाएं? तो फाइनली दे सेड कि चलो वी चूज सरस्वती, क्योंकि ज्ञान आ गया तो सब कुछ आ जाएगा, तो हम लोग बाद में कर लेंगे। तो जैसे ही उन्होंने कहा सरस्वती प्लीज यू एंटर, तो दोनों अपने आप एंटर हो गए, कहते हम तो ऑटोमेटिकली इनके साथ थे। So understand कि there is no shortcut, but what happens is it's a realization। आज आपके मन में ज्ञान आ गया कि ये सब चीजें टेम्पररी हैं, तो आप आँख खोल के देखोगे तो सही, क्या मैं खुश हूँ कि मुझे गुदगुदी हो रही है? मैं वो साइकिल में हूँ, कमाऊँ, बच्चों को पैदा किया, बच्चों को सेटल किया, उसके बाद राम राम सब किया। You have not come for that, you have to rise above it। बच्चे तो अपने आप बड़े हो जाएंगे, बच्चे अपने आप सेटल हो जाएंगे। आप जो माइंड का सोच रहे हो कि मुझे सारा ज्ञान प्राप्त करना है, want to be this, वो भी सब टेम्पररी है। There is no use of learning what is really not meant for you। आज लता मंगेशकर को कितना भी ज्ञान है, बाकी सब चीजों का कोई काम नहीं आ रहा है ना। Only her special singing talent is being used। So today many people get stuck up in ज्ञान। उनको लगता है बस मुझे ज्ञान चाहिए, वो पढ़ते रहते हैं यहाँ। They don't realize कि ज्ञान तो इनफाइनाइट है भैया, कहाँ तक पढ़ोगे, कितने जन्म तक ज्ञान लोगे? तो धीरे धीरे आपको अपने आप को सेटिस्फाई करना पड़ता है। एंड यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला, द शॉर्टकट फॉर्मूला ऑफ एंटरिंग इनटू द सोल कॉन्शियसनेस? व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर्मूला? सेटिस्फैक्शन। सबसे छोटा फॉर्मूला। आज अगर आपको वो टाइप का लाइफ में सक्सेस चाहिए, अबंडेंस चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, देन द फॉर्मूला इज सेटिस्फैक्शन। जिस दिन आप अपने बॉडी कॉन्शियसनेस को देखोगे, बोलोगे आई एम सेटिस्फाइड विद व्हाट आई हैव टुडे, आई एम सेटिस्फाइड विद माय चिल्ड्रन, आई एम सेटिस्फाइड व्हाट आई हैव अचीव्ड टुडे। उसके बाद आप माइंड कॉन्शियसनेस देखोगे कि यस आई हैव प्लेड अ रोल ऑफ अ वाइफ, ऑफ अ डॉटर, ऑफ अ, बट आई एम सेटिस्फाइड विद व्हाट आई हैव डन। सेटिस्फाइड का देखो कोई एंड नहीं है, यस और नो, कोई एंड नहीं है, पर ये आपको अपनी लिमिट डिसाइड करनी पड़ेगी कि आई वांट टू बी सेटिस्फाइड टुडे। इट्स योर चॉइस। आज अगर आप एक रोटी के बाद सेटिस्फाई होना चाहते हो या 10 के बाद सेटिस्फाई होना चाहते हो, इट इज योर चॉइस। कोई आपको रोकता नहीं है, कोई रोकता नहीं है। और जब आप सोल में आओगे, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो जाएगी। मेरी बॉडी कह रही है कि मैंने ये एक्सपीरियंस नहीं किया, मेरी शादी नहीं हुई, मैंने लाइफ में सारे प्लेजर्स एक्सपीरियंस नहीं किए। दे सेड इट्स ओके, आई नो, आई हैव सीन अदर्स एक्सपीरियंसिंग, आई डोंट वांट इट एनीमोर इन माय लाइफ। दे डिसाइड आई एम सेटिस्फाइड। फिर उनका माइंड रोता है, अरे मैंने तो लीडर नहीं बना, मैंने लाइफ में कोई बड़ी ज्ञान नहीं प्राप्त किया। कहते जितना मेरे पास ज्ञान है कि कमंडल लेके माउंटेन पे चले जाओ, आई एम सेटिस्फाइड। तो वो कमंडल से
ही सेटिस्फाइड है कि आई डोंट वांट टू सी माय सक्सेस एंड माय ग्रोथ एज अ लीडर, सो दे डिसाइड आई एम सेटिस्फाइड, एंड माइंड दे बिकम सेटिस्फाइड। फिर आपको पता है कितना वो टॉर्चर सहते हैं, उनकी सेंसेस, कभी भूख बोलती है, कभी नाक बोलती है कि मुझे स्मेल करना है, कभी जीभ बोलती है मुझे टेस्ट करना है, कभी शरीर कहता है कि मुझे फील करना है, कभी कान कहता है कि मुझे अच्छी अच्छी चीजें सुननी है, फिर वो कहते हैं मुझे पता है क्या क्या लोग करते हैं, आई एम सेटिस्फाइड। जिस दिन वो कह देते हैं आई एम सेटिस्फाइड, दे एंटर द सोल ऑटोमेटिक, इट्स द फास्टेस्ट एंड इट्स अ चॉइस। ये याद रखो, इट्स अ चॉइस। You want to do it, you can do it today. You can do it today. जब आप बिल्कुल तैयार हो, क्योंकि उसके बाद क्या होगा, you will walk on the path of the soul. और जैसे ही आप सेटिस्फाई करके सोल में आ जाते हो, वही कमंडल वाला पर्सन अकेले जब करता हुआ पूरे ज्ञान के साथ वापस आता है। He has all ज्ञान, उसको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है, ऑटोमेटिकली डाउनलोड होता है। बिकॉज इस वर्ल्ड में हमें कुछ इन्वेंट थोड़ी करना है, हमें वर्ल्ड में कुछ नहीं करना है, इट वाज ऑलरेडी देयर, वी जस्ट हैव टू इम्बाइब इट एंड वी हैव टू एक्सप्रेस इट। तो ये जितना भी ज्ञान है वर्ल्ड का, इट इज नॉट लर्न फ्रॉम योर कॉलेज और बुक्स, इट्स ओनली डाउनलोडेड। तो आज अगर आपने डिसाइड कर लिया कि भाई मेरे को तो सोल में जाना है, वो ब्रह्म ज्ञान ऑटोमेटिक डाउनलोड होगा। इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी रिलेटेड टू फिल्म इंडस्ट्री, इट कुड बी रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, इट कुड बी रिलेटेड टू पोएट्री, आर्ट्स, it could be related to painting, it will be related to who you are। ऑटोमेटिक वो ब्रह्म ज्ञान आपके अंदर डाउनलोड होगा, और जब ब्रह्म ज्ञान डाउनलोड होगा, you will live that, you will live। And what will be the advantage and disadvantage of entering the soul? Do you want to know? अब if you enter the soul, if you enter your passion, उसका फायदा क्या होगा और नुकसान भी क्या होगा? एक तो इसका फायदा ये होगा कि आपकी लाइफ में जो दुख है, आपकी लाइफ में जो पेन है, आपकी लाइफ में जो वरीज है, आपकी लाइफ में जो एंजाइटीज है, वो टोटली चली जाए। आज आप जो कंफ्यूज घूमते रहते हो, वेयर आई हैव टू गो, व्हाट आई हैव टू डू, कल क्या होगा, आपके जो अंधेरे हैं, आपकी आंखों के आगे जो अंधेरे क्लाउड्स हैं, डार्क क्लाउड्स आर ऑल गोइंग टू बी। You will stop looking at the past, you will stop looking at the future. You will start looking at the present. What I want to do today and what makes me joyful. What I am. You will become in the present. At the same time, कोई आपको uncertainty जो है परेशान नहीं करेगी। At the same time, आपकी लाइफ के जो आसपास के challenges है वो minimal हो जाएंगे। आपके बच्चे अपने आप सुधर जाएंगे, आपका spouse अपने आप लाइन पे आ जाएगा। You will attract people who are right people in your life. You stop attracting negative kind of situations and people in your life, because world is a mirror. जैसे ही आप बदल जाते हो and you enter the soul, you stop attracting all these negative people and situations in your life. और नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि जो लाइफ के जो प्लेजर एंड पेन है, जो इतने एक्साइटमेंट है, प्लेजर है, वो सब आपकी लाइफ से चले जाए। एक एक्सट्रीम एंजॉयमेंट है, एक्साइटमेंट है, चल मस्ती करें, चिल करें, फील करें, वो सब चला जाए। सो इट्स योर चॉइस। हो सकता है नाउ यू विल नॉट लाइक मेनी थिंग्स व्हिच यू लाइक बिफोर। अभी जो फ्रेंड्स के साथ है कि चल चल बाहर बैठते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, वो करते हैं, वो चला जाए। तो वो जो थ्रिल है, थ्रिल एंड चिल चला जाएगा। सो इफ यू आर रेडी फॉर दैट, देन यू कैन स्टार्ट ऑन दिस। तो ये जो स्पिरिचुअल जो है, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ है, बट इट्स अ काम ओशन। अगर ये वेव्स हैं ऊपर नीचे, दिस इज अ काम ओशन। इट्स योर चॉइस, यू वांट टू गो हियर और यू वांट टू बी हियर फॉर सम मोर टाइम। थोड़ा और थप्पड़े ले लो ऊपर नीचे, बाद में आ ही जाना यहाँ। इट्स योर चॉइस, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट नो वन कैन हर्ट यू इफ यू अलाउ, राइट? And what I'm telling you कि when you connect to your soul, when you become spiritual, आपको पता है आप तो प्योर हो ही जाते हो, आप तो प्योर हो जाते हो, आप अपने अंदर की सारी नेगेटिविटी निकाल देते हो। You don't speak ill of others, yes or no? You don't do bad to others. आप अपनी तरफ से तो प्योर हो जाते हो, पर एक बहुत बड़ा स्टेप है आपको बाहर की दुनिया को भी प्योर करना। Yes, वो ही बदलना है। सबसे पहले समझो कि nobody will hurt you purposely। मुझे बताओ, इस पूरे रूम में
कौन सा पर्सन किसी को पर्पसली हर्ट करता है? बताओ। कोई भी पर्सन है जिस किसी को जाके ऐसी गालियां दे देता है? बताओ। एनीबडी प्लीज रेज योर हैंड्स ऑनेस्टली। यू पर्पसली हर्ट अ पर्सन, यू गो पर्पसली किसी को उल्टा सीधा बोल के हर्ट करके आ जाते हो। कोई भी है? जब इस कमरे में नहीं है, मैं पूरे बॉम्बे से पूछूंगी, एक भी नहीं है। आज अगर आप सेटिस्फाइड हो एंड समवन इज टॉकिंग बिहाइंड यू और दे आर टेलिंग ईच अदर कि इसके पास ये नहीं है, उसके पास वो नहीं है, बट व्हेन यू आर सेटिस्फाइड दे विल चेंज। एंड व्हाट आई एम सेइंग इज इफ पीपल अराउंड यू आर टॉकिंग, देयर इज समथिंग व्हिच यू नीड टू नोटिस। मे बी यू नीड टू नोटिस, क्योंकि इसके दो ही कारण हो सकते हैं। एक तो ये है कि यू फील दैट यू नो पीपल टॉक बिहाइंड यू। इट कुड बी आपका पैटर्न, आपका बिलीफ हो सकता है। Because as I am telling, in spirituality, we don't have to cleanse only ourselves. ये नहीं कि आप ही अच्छे हो, ये नहीं कि बुद्ध ने सोचा भी मैं तो बुद्धा बन गया, I am the best. No, मेरे आसपास सारे बुद्ध, सारे, everybody is pure. आज अगर एक पर्सन कह रहा है कि you don't have this, then उसमें भी आपका हार्ट इतना cleanse होना चाहिए. You should go and tell him. You should be able to talk to him. You should be able to understand वो कहाँ से आ रहा है. Why he has got a grievance that you have not done this. Or maybe it is a universe telling you that you are prematurely satisfied and there is something else you need to do in your life. Maybe you are a case of inaction. Maybe you are not taking action. Understand? जैसे मेरे पास एक केस आया था. There was a client who came to me. वो क्या था? He used to always say, I'm very satisfied, I'm very satisfied. और उनकी वाइफ की जब काउंसलिंग हुई कहती I am very dissatisfied. My husband has not done this. He has not done this in life. Right? तो आप रिलेटिव्स को कह रहे हो, वो वाइफ का कहते हो। yes. तो क्या है कि उनकी वाइफ का जो था ना, she had this issue कि भाई ये बिल्कुल काम नहीं करते, घर पे बैठ गए, इसी में ये सेटिस्फाइड है। करेक्ट? अब इनके पास चॉइस है, बट he was very satisfied with suppose 8,000. वाइफ सेड कि भाई इससे घर नहीं चलता भाई, मेरे को बच्चों को बड़ा करना है, बच्चों की शादी करनी है, एंड वाइफ was not working. तो इसके लिए क्या है कि you have to listen to those relatives and the people, because again I repeat, it could be a case of inaction from your side. आप जिसको satisfied कह रहे हो, maybe it is your limit and you are not doing, you are more. You are not doing, you are more. You are satisfied because आपने जितना imagine किया था मैं कर सकता हूँ, उसके से ज़्यादा ही कर रहे हो. But what about you are more? Maybe you have to realize this. And maybe it is a positive thing, which is the universe boarding you. Come on, get up, get up. Don't be happy with this. Get up, do. Because satisfied जो है वो शरीर हो सकता है, but you have to enter your soul. Are you satisfied and living your life purpose, or are you satisfied and sitting at home? If you are sitting at home, it's serious. Because satisfied के बाद you have to enter your soul and you have to live your life purpose. Because आज हम इस दुनिया में केवल शरीर के लिए नहीं आए, हम केवल सर्वाइवल के लिए नहीं आए, हम केवल माइंड के लिए नहीं आए, हम केवल सेंसेस के लिए नहीं आए. We have come only for our soul and we have come to be a creator. If you are not a creator, you are stagnant, and stagnant means dead. Stagnant means dead. Yes, you are doing some kind of creation. For suppose Lata Mangeshkar or any particular successful people is singing, but she is very satisfied that she is singing, you know, in whatever way she is singing, whether she is charging less or more, she is happy because she is singing and she is satisfied. That's a different satisfaction. And one satisfaction is a case that I don't want to do anything, I want to sit at home because whatever I have achieved, I am satisfied with these kind of materialistic things. Definitely it is not your wife, it is the universe. Universe आपसे कह रहा है उठो, get up, you are more, you can do more. Start getting up and doing it. आज कोई भी चीज आपके एनवायरनमेंट में आती है, आपको इवॉल्व करने आती है. आपके आसपास में जो भी लोग आते हैं, whether it is your wife, whether it is your parents, whether it is your friends, every single person comes for a particular reason. कोई भी person ऐसे नहीं आता. Every person is sent to you to evolve. Every single person. वो डिजाइन होता है, डिजाइन. आपके बच्चे डिजाइन होते हैं to evolve. आपके आसपास every single person जो आता है is meant to evolve you to perfection, to completion. या तो एक पर्सन सिखाता है I should not be like this, या एक पर्सन सिखाता है I should be like this, या वो सिखाता है what I should change about myself or what I should release about myself.
एंड यूनिवर्स जो है ऑटोमेटिक अराउंड शेप ले लेता है। जैसे सपोज एक टिन का डिब्बा है, वो जहां जहां से उसमें गड्ढे हैं उसको फाइनली कंप्लीट डिब्बा बनना है। तो जहां जहां से उसके अंदर प्रॉब्लम्स है उसके अराउंड वो इंस्ट्रूमेंट्स बन जाते हैं। कहीं से वो फूला हुआ है तो एक हैमर बन जाता है सीधा, कहीं पर वो पिचका हुआ है एक वैक्यूम पंप आ जाता है कि इसकी प्रॉपर्टी को निकालो बाहर, कहीं पर उसके अंदर होल है, एक गैप है, someone comes to repair the hole and the gap. To make you perfect, universe takes a complete shape. You cannot satisfy everybody, but first ask yourself, are you satisfied and are you living for others or are you living for yourself? आप ये चीज सिंपल एक फॉर्मूला याद रखो, आज अगर आपकी अगेन आज आपकी आसपास की दुनिया में कोई प्रॉब्लम है, it is because you need to evolve. It's not that they have to be satisfied. They have to stop talking. They will stop talking when you become evolved. They will disappear from your surroundings. और बहुत लोगों ने देखा होगा, suppose you meet a particular kind of boss, right? जहाँ भी जाओ you meet one particular kind of boss. Maybe he is very critical of you or whatever. पर एक टाइम आता है when you learn how to handle such people and then you stop having such bosses. तो आपके आसपास के लोग वही हैं, वो शीशा दिखा रहे हैं what you need to change about yourself. Don't look at the world. The world is like this because you have to change. Evolve means you have to see, you have to change, you have to evolve means you have to go to a higher consciousness. आज अगर आप बॉडी में हो तो आपको माइंड, सेंसेस and finally you have to enter the soul. You have to finally evolve that you have to enter your heart. You have to do what you love and that is evolution. What we are saying is we can remove jealousy by having a positive attitude, right? आज किसी को हक करोगे तो ऑटोमेटिकली उसका हाथ हक के लिए आ ही जाएगा। तो आज अगर आपको लगता है कोई भी पर्सन आपके बारे में क्रिटिसिज्म कर रहा है, आपके बारे में नेगेटिव बोल रहा है, if you go and start smiling at that person, telling the person thank you, उसकी प्रशंसा 2-3 लोगों से कर लो तो वो ऑटोमेटिकली आपका सेवक बन जाएगा, गुलाम बन जाएगा, keep on running after. Okay? ये सबसे शॉर्ट एंड प्रैक्टिकल मंत्र है। And one thing we have to understand, कोई भी चीज परमानेंट लाइफ में होती ही नहीं है। क्रिटिसाइज वाला पर्सन हमेशा क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, उसका भी मुंह जल जाएगा, कितना क्रिटिसाइज करेगा। A person cannot be negative, it's a धूप छांव। So first thing we should stop defining people. We should start going beyond people also. Going beyond. एक पर्सन को देख के डिफाइन मत करो कि ये पर्सन ऐसा है, क्योंकि जब वो बदल जाता है आप घबरा जाते हैं। भाई अच्छा पर्सन बदल सकता है बुरे में और बुरा वाला अच्छा बन सकता है। आपने डिफाइन क्यों कर दिया कि ये अच्छा है? व्हाट इज अच्छा? भाई सिचुएशन के हिसाब से कोई भी बुरा बन जाएगा। कोई आपके साथ बुरा करेगा तो आप भी तो मुक्का मारोगे ना उसको। तो ऐसा तो है नहीं कि इट्स अ सिचुएशन, एवरीवन इज चेंजिंग एज पर सिचुएशन। पर लाइफ की जो फाइनल जर्नी है, एज आई सेड, इज रियलाइजेशन ऑफ सच्चित आनंद। और सच्चित आनंद में क्या रियलाइज करना पड़ता है कि वी हैव टू लिव ओनली इन द नाउ। और जब आप ओनली नाउ में जीते हो, जब केवल उसी समय जीते हो, आपको पता है आप खुद को भी भूल जाते हैं। क्या आपने नोटिस किया है कि व्हेन यू सिट विद समवन हु लव्स यू, राइट, अपने बच्चों के साथ बैठो, अपने लव्ड वन के साथ बैठो, आपको खुद का कुछ भी एहसास नहीं रहता। आप म्यूजिक सुनो बड़ी अच्छी सी, आप बहुत अच्छा टेलीविजन शो देखो, एनीथिंग यू सी दैट यू लव, यू फॉरगेट योरसेल्फ। यस और नो? अल्टीमेटली आपका एम होता है यू रीच सच्चित आनंद, where you are all the time in the now and you don't know who you are. You totally forget yourself. आपको अपना वजूद ही नहीं पता होता है। You don't know yourself. आपको अपना कोई भी सेल्फ का ध्यान नहीं रहता। मेरा शरीर, मेरा माइंड, मेरी चाहत, मेरा सेंसेस, you don't know anything about yourself. You just live as a consciousness. वो होता है सच्चित आनंद। और सच्चित आनंद में the moment you come in the now, there is no definition. क्योंकि now में किसी की definition नहीं होती है। आज अगर मैं पूछूं कि भाई आपकी वाइफ कैसी है, आपको बड़ा कंपेयर करना पड़ता है उससे, कब ऐसे किया, पहले ऐसा किया, फिर ऐसा किया। और वो भी मैं आपसे अलग अलग पीरियड में पूछूंगी। कभी कहेंगे वाइफ ऐसी क्रिटिसाइज करती है, कभी कहते नहीं मैडम बहुत अच्छी लेडी है, कभी कहते नहीं उसने लाइफ में बड़ा स्ट्रगल किया है। एवरी टाइम यू विल हैव अ डिफरेंट डेफिनेशन। बट इन द नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एनीवन क्लोज टू यू, यू हैव नो डेफिनेशन। सो ये मैजिक होता है, इन द नाउ देयर इज नो डेफिनेशन, ना आपकी totally you come in the now and everything becomes fresh. हर
चीज उससे समय होती है। उस सिचुएशन के हिसाब से यू इंटरेक्ट विद द वर्ल्ड, you interact with the people, situation के हिसाब से you take action. It is nothing about one person being good, bad, helpful, criticizing. Criticizing person could become a praising person. Good person can become a helpful person. Negative person can become a positive person. It is all the खेल of समय, समय का खेल। तो जैसे ही आप नाव में आ जाते हो, खुद को तो भूल ही जाते हो, लोगों को भी भूल जाते हो, सब कुछ भूल जाते हो, हर चीज की डेफिनेशन भूल जाते हो। When you see the now, you see the situation, you see the circumstances, you see the need of the time, and you take an action. You take an action. So ultimately, our purpose is to come in the now. पर now में हम क्यों नहीं आ पाते? क्योंकि इतने सारे जो pleasure and pain है लाइफ के, वो हमें पुल करते हैं। लाइफ के जितने भी pleasure and pain है, they keep on pulling you. They don't allow you to come in the now. तो सबसे पहले जो प्लेजर एंड पेन है उसका डेफिनेशन ही डिस्ट्रॉय करना पड़ता है, बिकॉज रियलिटी में देयर इज नो प्लेजर। सच्चाई में बताओ कोई प्लेजर होता ही नहीं है, देयर इज नथिंग कॉल्ड प्लेजर। आज अगर अपने फ्रेंड्स के साथ एक एक्सपीरियंस को प्लेजर बोला है, वो भी प्लेजर नहीं है। अगर प्लेजर होता तो इनको तो नहीं लग रहा प्लेजर, मुझे तो नहीं लग रहा प्लेजर, आपकी मम्मी को तो लगेगा नहीं प्लेजर, क्योंकि रिस्क ले रहा है जबरदस्ती का, क्या प्लेजर है? अगर प्लेजर होगा तो सबको प्लेजर लगना चाहिए, यस और नो? और अगर प्लेजर है तो आपको जिंदगी भर प्लेजर लगना चाहिए। आप बचपन में खेलते थे रिंगा रिंगा रोजेस, अब प्लेजर है? बचपन में गुड़िया के बाल खाते थे, आज प्लेजर है? बचपन में ऑरेंज वाली आइसक्रीम खाते थे, प्लेजर है? लॉलीपॉप खाते थे, कितनी चीनी चीनी होती थी, चीप सी, 2 रुपए की भी नहीं होती। अब तो नहीं है प्लेजर। उस समय कितना प्लेजर होता था, उसके लिए लड़ते थे, रोते थे, गाते थे। So today आप जिस भी चीज को प्लेजर बोलते हो, whether it is what you are eating, आज आप देखो आपको जो जो खाना प्लेजर देता है, उस खाने के साथ कोई मेमोरी है तभी वो प्लेजर देता है। आज अगर आपने कॉलेज के बाहर आलू पराठे में दही खाया हुआ है तो आपको वो बड़ा प्लेजर देता है। आपने छोला भटूरा कॉलेज के बाहर खाया, आपकी मम्मी बहुत अच्छा कढ़ी चावल बनाती थी, तो आप कहोगे इट इज प्लेजर, बट नॉट नेसेसरी। देयर आर मेनी पीपल हु हेट कढ़ी चावल, many people who eat छोलो भटूरा। आप एक जर्मन पर्सन को बुलाओ, कि oh God, what oily smelly thing। भाई अगर प्लेजर है तो सबको होना चाहिए, एंड एट द सेम टाइम आपके लिए भी हमेशा होना चाहिए। अगर आज आप बीमार हो, कैन यू ईट दैट सेम छोला भटूरा? आज आपका मूड खराब है, कैन यू ईट छोला भटूरा? जब आप मॉर्निंग में उठते हो, उठते से चाय की जगह कोई छोला भटूरा दे, विल यू लाइक इट? तो आपके लिए छोला भटूरा बदल गया, सवेरे बदल गया, दोपहर को बदल गया, रात को बदल गया, तबीयत के हिसाब से बदल गया, यस और नो? तो अंडरस्टैंड कि एवरी प्लेजर एंड पेन लाइक दिस इज अ डेफिनेशन। एवरी प्लेजर एंड पेन, चाहे वो खाना हो, चाहे परफ्यूम हो, चाहे वो देखने का टेलीविजन हो, एनी काइंड ऑफ प्लेजर, वेदर इट इज स्मेल, वेदर इट इज टेस्ट, वेदर इट इज टच, वेदर इट इज साइट, वेदर इट इज हियर, म्यूजिक, एवरीथिंग इज अ डेफिनेशन। और वो डेफिनेशन आती है बिकॉज यू हैव कंपेयर्ड विद द पास्ट। आपके साथ उसके अंदर एक रिद्धि घुसी हुई है, इसलिए अच्छा है क्योंकि मेरी मम्मी बड़ी प्यार से मुझे खाना खिलाती थी, इसलिए मुझे खाना पसंद है, क्योंकि मैं खाना देखता हूँ तो मुझे प्यार महसूस होता है। वी एसोसिएट फूड विद लव, तो फूड बिकम्स अ कंफर्ट फूड। व्हेन वी फील वी आर लैकिंग इन लव, वी ईट मोर फूड टू फील मोर लव। ये सारे डेफिनेशन और एसोसिएशन, हर चीज एसोसिएशन। आज अगर आपको कोई बोले कि चलो एक अच्छा सा सेलिब्रेशन हुआ, आपके मन में इमीडिएटली याद होता है ओ केक, यस? सेलिब्रेशन मींस पार्टी, फ्रेंड्स के साथ एंजॉयमेंट मींस बाहर जाके खाना। दीज आर ऑल डेफिनेशन, सब डेफिनेशन। और ये डेफिनेशन बनते हैं बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ एसोसिएशन विद द पास्ट। सब एसोसिएशन होता है पास्ट का, एवरी सिंगल डेफिनेशन। और हर डेफिनेशन आपका इंडिविजुअल होता है जो बदलता रहता है, वो एक दिन में भी बदलता है और समय के साथ भी बदलता है। और जब तक आपने ये डेफिनेशन नहीं हटाए, यू कांट कम इन द नाउ, क्योंकि डेफिनेशन खुल गया। दिस इज वंडरफुल, वो तो है ही। आज हम जो नाव में आते हैं उसमें बहुत सारे रीजंस होते हैं। सबसे पहले तो नाव में आने का क्या डर होता है, क्योंकि सबसे पहले जो हमारी आइडेंटिटी होती है, सबसे पहले तो सारे ये फियर्स एंड डेफिनेशन पुल करते हैं। ये डेफिनेशन के कारण हमारी लाइफ में प्लेजर भी होता है बट पेन भी होता है।
आज इसी चीज के साथ आपने डेफिनेशन बना रखा है। जैसे आपने अच्छा डेफिनेशन बना रखा है, आई लाइक दिस, वैसे ही आपने बहुत सारी चीजों का बना रखा है, आई डोंट लाइक इट, आई डोंट लाइक व्हेन पीपल क्रिटिसाइज मी, आई डोंट लाइक फेलियर, आई डोंट लाइक लॉसेस, आई डोंट लाइक people cheating me, I don't like people betraying me, and sorry वो भी सच है। तभी मैंने कहा कि when you come to the mode of now, you stop attracting these negative things, क्योंकि negative things भी इसलिए आ रही है because you have got a definition। आपकी जितनी भी definition है, they keep on, they are like रित्तीस। आपका जो चित्त होता है, चित्त is your consciousness, and चित्त क्या होता है? You are the चित्त। आप finally एक चित्त होते हो, चित्त is you। तो आपका जो चित्त है उसके अंदर अलग अलग रित्तियां होती है। रित्तियां मीन डेफिनेशन, एंड डेफिनेशन यू कांट से आई हैव ओनली पॉजिटिव डेफिनेशन। आपकी अगर 50 पॉजिटिव है तो 50 नेगेटिव होनी पड़ेगी, तभी बैलेंस होगा। तो जितनी चीजें यू लव उतनी ही चीजें यू डोंट लव, जितनी ही चीजें गिव यू प्लेजर उतनी ही चीजें गिव यू पेन। तो क्या होता है जब आपकी रित्तियां होती है, ये रित्तियों के हिसाब से आप लाइफ में सिचुएशंस अट्रैक्ट, यू अट्रैक्ट ऑटोमेटिकली उस टाइप के लोग आते हैं आपकी जिंदगी में, उस टाइप के सर्कमस्टेंस आते हैं क्योंकि वो रित्ती को फिलफिल हो, यू अट्रैक्ट एज पर योर चित्त। तो बेसिकली चित्त को क्लीन करने के लिए सारी की सारी डेफिनेशन को पकड़ के डिस्ट्रॉय करना पड़ता है विद ज्ञान योग, उसको डिस्ट्रॉय करके भस्म करना पड़ता है। First, we have to understand that in this life we have come without any liability. There is no liability. आज हमारे बच्चे हमारी liability नहीं होते, आज हमारा कोई भी responsibility नहीं है, कोई भी liability नहीं है। Today, every relationship in the world is a partnership. It's a partnership. It's a clear partnership. We are not responsible to make our children great. We are not responsible, but it is a partnership, and we honor the partnership. When the children are growing up, you provide for them food, clothing, shelter, etc. If they want your guidance, you will give them the guidance. Not necessary that if you are a good mother, your children will be good. And not necessary if the lady is uneducated, the child is not the prime minister of the country. ये भी नहीं। तो आज अंडरस्टैंड करो कि आपके बच्चे की जो डेस्टिनी है वो आप पे डिपेंडेंट नहीं है। बच्चे को ऑलरेडी पता है what he has come for. He has chosen you in your life. He has chosen you. You have not chosen the child. The child has chosen you because that was the right environment for the child. So we have to understand जिंदगी में everything is a partnership. जब हम अपना रोल प्ले करते हैं as a mother, it is just food, clothing, shelter. बच्चा अपना रोल प्ले करता है. We don't have any liability. It's not our responsibility to help the children. Today, if you are working in a company, it's not your liability कि I should do it well or I should make it successful. रियलिटी में जब हम लाइबिलिटी सोचते हैं हमारे अंदर प्रेशर आता है, वी फील वीक, वी फील पावरलेस, वी फील पुल डाउन। और जिस दिन सोचो इट इज नॉट माय लाइबिलिटी, आई एम डूइंग माय पार्ट, यू डू योर पार्ट। समथिंग लाइक टुडे इफ आई एम हैविंग दीस टकरियो क्लासेस, आई डोंट हैव एनी लाइबिलिटी कि मैं किसी का एवोल्यूशन करूं, ना मेरे अंदर रिस्पांसिबिलिटी है। आई एम लिविंग माय ड्रीम, आई एम लिविंग व्हाट इज माय ट्रू नेचर। अब उसको मैं जब एक्सप्रेस करती हूँ, आप उसका फायदा उठाना चाहते हो, आप उठा सकते हो, नहीं उठाओ, योर चॉइस। प्रसाद बट रहा है, जिसको चाहिए वो ले जाए, जिसको नहीं चाहिए उसकी मर्जी। सो वी डोंट हैव एनी लाइबिलिटी। अगर लाइबिलिटी होती तो सारे भगवान लोग बिल्कुल परेशान हो रहे होते। आज दुनिया में जो पनिशमेंट मिलती है, जो भी प्रॉब्लम्स मिलती है, वो भी तो भगवान ही देता है। Yes or no? The universe gives, the life gives. So we have to understand when we take it like a partnership, everything like a partnership. Your parents, partnership. You don't have a liability to your parents. It's a partnership. They helped you when you were growing up. Now they are old, you help them. It's honoring the partnership. It's only honoring the partnership. Today you are working in a company or you are working as a teacher. You don't have any liability for your children. You don't have any liability for your employees. You will do your part, let the children do their part. When you take like a responsibility, there is a push, pull, control, expectations, hurt, etc. And nobody has freedom. आज जितना आप अपने बच्चों को फ्री छोड़ोगे उतना दे विल इवॉल्व। आप जितना अपने पार्टनर को फ्री छोड़ोगे उतना ही विल इवॉल्व। जितना आप अपने एम्प्लॉयज को फ्री छोड़ोगे दे विल इवॉल्व, दे विल अंडरस्टैंड देयर रिस्पांसिबिलिटी बाय देमसेल्फ।
They will realize I am not doing work क्योंकि मेरे बॉस ने कहा है या मेरा बॉस मुझे कंट्रोल कर रहा है. They will realize I am doing the work because I enjoy, because this is me. I enjoy doing. जब हम लाइबिलिटी सोचते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी सोचते हैं, कंट्रोल सोचते हैं, तो लोगों का नेचुरल इंस्टिंक्ट दब जाता है. Employees cannot work freely. They cannot work with enjoyment. They cannot work with freedom. So life में we have to learn to release all controls. First understand why are we controlling? हम control ही क्यों कर रहे हैं? Why are we controlling? We are trying to control our office people. We are trying to control our customers. ये कहीं और ना चला जाए. We are trying to control our suppliers. ये किसी और को ना दे दे. We are trying to control कि मेरी जो कंपनी, मेरा बॉस मुझे ना निकाले. Everywhere you are trying to control. जब कंट्रोल करते हो तो हार्ट पे बड़ा प्रेशर होता है. और जब प्रेशर होता है तो हमें क्या हो जाता है? ब्लड प्रेशर, बीपी. Then you control. So first understand why are we controlling? What is the fear of leaving control? Do we feel मैंने कंट्रोल छोड़ा तो सब लोग तितर बितर पता नहीं कहाँ चले जाए? Why are we controlling? Because we are satisfying the ego कि क्योंकि मेरे कंट्रोल में हर चीज है. Everything in my house is under my control, so it's running well. Yes? One is आपका ego satisfy हो रहा है कि मैंने कंट्रोल किया इसलिए it is running well. और हम क्यों कंट्रोल कर रहे हैं? Why are we controlling? Yes, we are controlling कि ये मेरा है, ये फैमिली मेरी है, मेरा है. Let me control. Because if I leave it, खराब हो जाएगा, बिगड़ जाएगा. If I leave it, it will go और ही बिगड़ जाएगा. आज मैंने अगर अपने बच्चे को कंट्रोल नहीं किया, वो तो पढ़ाई नहीं करने वाला. He is not going to study. इतना पढ़ के मार के भूत बना के उसको मैंने पढ़ाई कर दी. Only because of me. Is it true? Is it true? We have to realize जिस दिन हमने कंट्रोल छोड़ा होता, वो पर्सन अपनी नेचुरल इंस्टिंक्ट के साथ उनका खुशी से पढ़ता. आज वो आपका दुश्मन है. So number one, why are we trying to control? We are trying to control only out of fear. We have fear. हमारे अंदर fear है कि आज अगर मैंने कंट्रोल छोड़ा, एम्प्लॉइज तो काम ही नहीं करेंगे. कोई यहाँ जाएगा, कोई वहाँ जाएगा, कस्टमर्स कहीं और जगह चले जाएंगे. राइट? तो जिस दिन हमने कंट्रोल छोड़ा, what will happen? They will become our partners. कंट्रोल छोड़ के ये नहीं कि बिल्कुल देखना बंद कर दो. कंट्रोल छोड़ना का मतलब है they are partners. When I am playing my role, I trust them to play their role. I trust them. Trust नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं. It's not going to work. So when you say I am playing my part in a family, in a relationship, if I am a proper spouse, if I am a father, I am playing my part of a father. The better they play the part of their children, and we are partners. If it doesn't work, we are going to communicate. We are going to talk. We are going to negotiate. But there is going to be no control. What happens when people are not able to do control? वो छोड़ ही देते हैं कि I don't have any control. That is also not good. When people are not able to control something, they just leave it with the fear, I don't have any control, then life goes totally out of their. So we have to realize कि जब हमने कंट्रोल हटा दिया अपने फैमिली से, अपने वर्किंग एनवायरनमेंट से, अपनी रिलेशनशिप में, you can't go anywhere, you have to be only with me, जो हमारी रिलेशनशिप पे कंट्रोल है, हमारे वर्क पे कंट्रोल है. Today why many people live in a threatened life in their workspace? ऑफिस में why they are always feeling threatened? Because they feel कि कहीं ना कहीं मेरे में instability ना आ जाए. I have to control. They are very much worried about what the boss thinks about them or what their colleagues think about them. Basically, it is a control. So they want to control their environment. So are you realizing that fear of control? Yes? कि आपके अंदर अगर ये fear होगा कि मुझे कंट्रोल करना है और अगर मैंने कंट्रोल करना छोड़ दिया, everything will get spoiled. Only then we will be able to be ready to release control. Even that also we have to remove. We have to remove the control lines of even people controlling us. People control us when we feel that we have got something to take from people. The person also knows he has something to take from me. We have to understand world में किसी को किसी से लेना नहीं है. Nobody is more superior than the other. Everyone is a partner. आप जो दे रहे हो, वो भी वो दे रहे हो. Today when you are grooming your child and you are giving the child, stability, when you become old, the child will honor his father.
So today the control lines, when someone controls you, because somewhere you feel dependent on the person. Somewhere you feel you are getting something from the person. See, the moment you said the word dependent, if you are dependent on the person, control I will. First is, why are you dependent? In what way do you think physically, emotionally, mentally, socially you need anybody in your life? सबसे पहले वो डिपेंडेंसी हटाओ. Why do you think you need someone physically? Physical dependency को ही हटाओ. Do you think today if you have got a spouse or you have got someone taking care of you, are you dependent on the person? Are you dependent? Dependent is a word means I cannot do without the person. Do you feel you are physically dependent or do you feel it's a relationship? Yes? It's a relationship, right? तो जब आपको डिपेंडेंसी का fear कि I cannot manage without this person, I need this person physically, whether it's your employee, whether it is your driver, whether it's someone working for you, whether it's your spouse, whether it's your girlfriend. If you feel dependency on someone, it could be emotional need, it could be physical, it could be mental. The moment आप किसी से dependent हो जाते हो किसी पे, the person starts controlling. तो सबसे पहले अपने आप को देखो, what is my dependency? और जो अपने अंदर जो fear है of losing that person in your life, उसको निकाल दो. That today if I lose this person also someone else will come. I agree that the person is the best. Still I release the fear of losing. I release the fear of losing. Only then वो dependency जाएगी and it will become a partnership. Dependency होगी, there will always be expectations, control, push, pull, frustration, helplessness और वो person का natural instinct जो है वो बाहर नहीं आता. तो महाभारत की स्टोरी है और स्पेशली ये वाला जो प्रसंग है जिसमें द्रौपदी का चीर हरण हुआ था, ये जो है ये हमारे स्वादिष्टान चक्र में प्ले हुआ. ये कहानी क्या बताती है? दैट वो हमको लिमिट बताती है, किस लिमिट में हमें अच्छा होना है, किस लिमिट में हमें स्वयं को डिफेंड करना है. तो बेसिकली अगर आप कहानी को प्रॉपरली स्पिरिचुअल वे में समझो तो महाभारत की जो स्टोरी है, जो स्वादिष्टान चक्र में द्रौपदी जो है, शी सिग्निफाइज योर आत्मा, यू, आप द्रौपदी हैं. और ये जो 5 पांडव है, ये आपकी 5 बहुत सिग्निफिकेंट क्वालिटीज हैं. जो अर्जुन है, वो वेरी इंटेलिजेंट, बहुत स्किलफुल वॉरियर थे. भीम जो है, पावर, राइट, आप सबके अंदर स्ट्रेंथ है, सबके अंदर एक इंटेलिजेंस वॉरियर है. एंड एट द सेम टाइम जो युधिष्ठिर है, वो सत्यवादी, फॉलो ऑफ धर्म. आपके अंदर एक है कि आई वांट टू फॉलो धर्म, एक आपके अंदर एक पॉजिटिव चीज है, आई वांट टू फॉलो धर्म. और फिर है नकुल एंड सहदेव, दे वर आल्सो वेरी टैलेंटेड एंड वेरी स्किलफुल पीपल. तो ये सब आपके अंदर की 5 प्रॉपर्टीज हैं. तो इसमें जो महाभारत की क्या स्टोरी थी कि जब तुम बहुत ज्यादा धर्म को फॉलो करते हो, टू मच, आई वांट टू डू एग्जैक्टली एज पर प्रिंसिपल्स, यू आर टेकन एडवांटेज. यस और नो? तो महाभारत में सब तरह का चपलता दिखाई गई है. कैसे अश्वत्थामा को मारा गया बोल के, कि अश्वत्थामा को नहीं मारा गया, जब उनको बोला कि भाई आपका बेटा जो है, जो द्रोणाचार्य ऋषि को बोला गया कि आपका जो बेटा है अश्वत्थामा की डेथ हो गई है, तो उन्होंने कैसे बोला? उन्होंने एक हाथी को लिया, उसको क्राउन किया, उसका नाम अश्वत्थामा दे दिया और जाके बोला कि अश्वत्थामा मर गया. तो उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा, युधिष्ठिर तुम तो हमेशा सच बोलते हो, क्या वो मरा है? उसने कहा हाँ, अश्वत्थामा हाथी मर गया. तो उसमें दिखाया है कि टू विन द थिंग्स इन योर फेवर, इट्स पॉसिबल कि आपको उंगली टेढ़ी करनी पड़ सकती है घी निकालने, एंड इट इज ओके. ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर. यू डोंट हैव टू बी सो नाइव. Like lot of people come to me saying, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं हमेशा सबका अच्छा चाहता हूँ, लोग मेरा फायदा उठा लेते हैं, मैं लोगों को पैसे देता हूँ, वो मेरे पैसे लौटाते नहीं हैं. तो मैं कहूँगा कि पैसे क्यों नहीं देते, पैसे क्यों देते हो? तो वो कहते हैं पैसे नहीं दूंगा. उससे इतनी बड़ी सॉफ्ट स्टोरी सुनाई कि मैंने पैसे दे दिए. तो ये कहानी से हम सीखते हैं कि डोंट बी नाइव. यू हैव टू बी अ नाइस पर्सन, बट यू कांट बी फुलिश, यू कांट बी नाइव. यू हैव टू बी स्मार्ट. अगर किसी को पैसे देते हो तो पैसा निकालना भी आना चाहिए. किसी की कोई सेवा करते हो या कुछ करते हो, आपको पता होना चाहिए आई विल गेट इट इन रिटर्न, और अदरवाइज यू डू एंड फॉरगेट अबाउट इट. फिर तो नेकी कर दरिया में डाल. सो यू शुड नो हाउ टू प्रोटेक्ट योर बाउंड्रीज. तो ये जो स्वादिष्टान में 5 पेटल्स है, ये 5 पांडव है, और जो छठा पेटल है दैट इज करण.
कर्ण जो है, अगर महाभारत की स्टोरी देखो तो कर्ण उनका खुद का भाई था, कुंती पुत्र ही था, बट वो उनके अगेंस्ट लड़ता है। तो आज आपके अगेंस्ट कौन है? आपका ईगो, आपका खुद का ईगो। टुडे व्हाट, आज आप जब कहते हो कि मैं इसको पैसे दे दूं, आपका खुद का ईगो होता है कि लाइक पैसे नहीं देगा ना, यू विल नॉट बी अ गुड पर्सन, तो उसको हेल्प नहीं करेगा ना, यू विल नॉट बी अ गुड पर्सन। तो ये आपका खुद का अहम है जो आपके अगेंस्ट लड़ता है। और ये जो है, दिस इज द स्टोरी ऑफ महाभारत। वैसे हर जितने भी आप स्टोरी देखोगे, हर स्टोरी का कोई ना कोई मीनिंग है। जैसे एक स्टोरी आपको और बताती हूँ, जैसे समुद्र मंथन की स्टोरी। समुद्र मंथन में क्या होता है, एक तरफ जो है दानव होते हैं और एक तरफ देव होते हैं, और वो सब जो है मंथन कर करके अच्छी अच्छी चीजें निकालते हैं, और फाइनली उनका एम होता है कि हमें जो है डिवाइन नेक्टर, अमृत को निकालना है उसके अंदर से। तो एक्चुअली ये जो मंथन है वो कंटिन्यूअसली आपकी बॉडी के अंदर होता है, कंटिन्यूअसली आपके अंदर से जो आपकी अच्छी क्वालिटीज है वो आपके देव है। ऑनेस्टी, पॉजिटिविटी, हार्ड वर्क, ट्रूथफुलनेस, जो भी आपकी अच्छी क्वालिटीज है, दे आर द देव, और वही आपके अंदर चालाक टेलिंग लाइज, यू नो, बीइंग डिसऑनेस्ट, नॉट वर्किंग, प्रोक्रेस्टिनेटिंग, लेजीनेस, सेल्फ डाउट, दिस इज योर नेगेटिव क्वालिटीज। और दोनों क्वालिटीज के अंदर मंथन होता है, मैं जीतूंगा कि ये जीतेगा। कुछ लोगों में असुर भी जीत जाते हैं और कुछ लोगों में देव जीतते हैं, और हमारा एम होता है कि फाइनली ट्रुथ शुड विन, द देव शुड विन। तो दोनों की दोनों जब मंथन कर रहे होते हैं तो इतनी सारी अच्छी अच्छी चीजें निकलती हैं इसमें से। यस, उसमें से ही लक्ष्मी निकली। आपका पावर टू अर्न वेल्थ कम्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ द, आपके अंदर जो चर्निंग होती है। लक्ष्मी जी आती हैं, कल्प वृक्ष आता है, कामधेनु गाय आती है, उच्चैश्रवास घोड़ा आता है, धनवंतरी आता है, जो इतनी सारे जो 14 रत्न निकले थे वो समुद्र मंथन से ही। और मंथन से एक और चीज क्या निकली थी? हला, पॉइजन। क्योंकि जब आपका मंथन होता है तो आपके अंदर बड़ी नेगेटिविटी आती है, क्योंकि मंथन कैसे होता है? लाइफ सेंड्स यू चैलेंजेस। लाइफ जो है आपको चैलेंजेस भेजता है, आपको गलत गलत लोग भेजता है आपके सामने ऐसी सिचुएशन देखता है जो आप हैंडल नहीं कर पाते हो। और जब आप ये नेगेटिविटी देखते हो तो आपके अंदर से एक जहर निकलता है। यस, इतना गुस्सा आता है, आपको लगता है सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दूं, मैं अच्छा बनना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्ट्रगल, आई वॉन्ट टू कम अप इन लाइफ, बट स्टिल आई एम मीटिंग दीज चैलेंजेस। तो जब आपके अंदर वो हलावल पॉइजन आता है, आपके पास चॉइस आती है, या तो मैं गटक लूँ और खुद को डिस्ट्रॉय कर दूँ उस जहर से, और नहीं तो जो पार्वती होती है, पार्वती इज योर माइंड, योर लॉजिक। पार्वती आपको क्या कहती है? इधर गले में पकड़ ले, पॉइजन को इधर पकड़ ले, वो जो जहर आ रहा है वो यहाँ आ रहा है, यू वॉन्ट टू ब्लर्ट इट आउट, यू वॉन्ट टू स्पिट इट, यू वॉन्ट, फेंक भी नहीं सकते ना पी सकते। पार्वती कहती है इसको यहाँ रोक ले, क्योंकि यहाँ पर विशुद्ध चक्रा में कौन निवास करते हैं? गुरु, आपके गुरु। बाय लॉजिक ऑफ योर गुरु यू कैन डिस्ट्रॉय द पॉइजन, एंड दैट इज व्हाट वी डू इन चक्र। हम हर चीज का जो जहर है वी जस्ट डिस्ट्रॉय। आज एक पर्सन ने आपके साथ बुरा बिहेव किया, उसको स्माइल करो, उसको लव करो, या वो डेफिनेशन ही हटा दो कि ही इज बीइंग बैड टू यू, because nobody actually is bad, nobody actually is bad to another person. बुरा कोई होता नहीं है, people express what they think, it's your choice whether to take it or not take it. बुरा कोई भी नहीं होता, प्लेजर भी कुछ नहीं होता, पेन भी कुछ नहीं होता। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर रख लो, यहाँ पर लॉजिक होता है। और आप एक एक्सपेरिमेंट करो, आपको कभी भी कोई चीज़ बहुत नेगेटिव लगती है, कोई भी चीज़ आपको लगता है इतना जहर है, आई डोंट नो हाउ टू डाइजेस्ट इट, वो जहर को इधर लाओ, जस्ट सिट एंड लुक एट इट फॉर 2 minutes, यू विल बी सरप्राइज्ड, वो एंगर, नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली चली जाएगी। जस्ट कीप इट हियर, डोंट ब्रिंग इट टू द स्टमक एंड ट्राई टू डाइजेस्ट एंड प्रोसेस इट कि वो मेरे साथ क्यों हुआ। Just put it here and think about it. When you just focus your attention with that poison, with that negativity here, you will find an answer. तो ये सब जितनी भी स्टोरीज हैं, they are actually, ये सारी स्टोरीज हमारे DNA में built in है for us to learn the lessons. Okay? देखिए गुरु सब exist किए, they are all gurus who exist, and time and again they are coming. देखिए बुद्धा महावीर के बाद इतने सारे गुरुज आ रहे हैं, time and again they are coming. And everyone is telling some part of life. कोई भी गुरु पूरी जिंदगी नहीं बता रहा है. Every guru is telling one part of life.
बुद्धा taught you renunciation. कि आज what was Buddha's main message? Desire is the cause of all sufferings. और उसको समझना is a very deep thing. समझना बहुत deep चीज है कि how desire is the cause of all suffering. तो उसको properly भी समझना बहुत जरूरी है. It doesn't mean become a renunciate and go everywhere and go somewhere and leave your family and you will be happy. No. What he said was जितनी भी आपके मन में desires हैं वो सब external है. तभी मैंने आपसे कहा था कि चक्र योगी लेवल 2 में हम जब अपना माइंड बॉडी सेंसेस से एसोसिएशन हटा देंगे तो आपके अंदर डिजायर ही नहीं रहेगी. और जो डिजायर जिसको बोलते हैं डिजायर इज द कॉलिंग ऑफ योर सोल. टुडे जो भी पर्सन अपनी एक्चुअल क्रिएटिविटी जीते हैं दे डोंट हैव अ डिजायर. टुडे रविंद्रनाथ टैगोर की डिजायर नहीं थी कि आई राइट पोएट्री. ही वाज अ पोएट. तो आज अगर A.R. रहमान composes some music, he doesn't have a desire, he wants to compose music. He's a music composer. So आपकी desire totally annihilate हो जाती है, आपका कर्म totally annihilate हो जाता है when you connect to your soul. Mind, body, senses तक आपके मन में कर्म रहता है, कर्म, a doing, a feeling, a thinking. जैसे ही आप soul के अंदर आते हो, you are left with आप केवल बी रह जाते हो. बी. आज गाय जो है वो आपको दूध देना नहीं चाहती है, वो दूध देने वाली गाय है. आज कुत्ता जो है वो नहीं चाहता कि आपके साथ लॉयल रहे या आपके घर की रखवाली करे. वो कुत्ता है, उसकी ये ट्रेट्स है. So today every person who achieves self-realization, he doesn't have a desire to serve the humanity. Today your ultimate life purpose is not to serve the humanity. Your ultimate life purpose is to live your being. मैं कौन हूँ? मैं वो जीना चाहता हूँ. और जिस दिन you realize कि जो मैं जीना चाहता हूँ, that is my true love, that is my प्रेमिका, that is my true passion. Then you realize वो मेरा true passion है, true love है. क्योंकि जिस दिन वो true love को आप पहचानोगे, आप बेतहाशा भागोगे उसके पीछे. आप स्वयं के पीछे भागोगे. कहाँ किसको ढूंढ रहे हो? स्वयं को ही ढूंढ रहे हो. You are not searching for anything. You are only searching for yourself. When we say you are more, what we mean to say is that you are more than what you think. You are constantly evolving. You can't stop. You are constantly evolving. और ये voice of the universe. आज why Krishna told Arjun, come on, get up, fight. It's not about procrastinating. It's not about putting your feet back. It is about action. Every single God, every single story is about action. So when we say you are more, it is basically that you have to evolve. You can't be stagnant at all. That is why हमारे अंदर DNA है. We are never satisfied. हमें करना पड़ता है, experience करना पड़ता है. After all, once you finally reach your being, right? Being में भी you keep on evolving. आपको पता है, it's not that once Einstein made the bulb, he did not evolve. वो bulb और बनता गया, electricity बनती गई. Even though he is not there, उसके ज्ञान से more and more electronic things were made, and he is still alive. ग्राहम बेल ने जो पहला फोन बनाया था डायलिंग वाला, अब कहाँ तक हम कौन से कितने हाईटेक फोन्स पे आ गए. वही है, वही नॉलेज यहाँ तक इवॉल्व हो रही है. बिकॉज टुडे यूनिवर्स का कॉल है यू आर मोर. टुडे यूनिवर्स का इंटेंशन है यू आर मोर. वी आर बोर्न फॉर एक्सपीरियंसिंग ओनली. आज हम कोई नई चीज इन्वेंट नहीं कर रहे. हम जो भी चीज इन्वेंट करें वो ऑलरेडी हो चुका है. आज अगर एक मिठाई वाला मिठाई बनाता है, उसने कोई क्रिएटिवली कोई नई मिठाई क्रिएट की है जो किसी ने नहीं देखी है. ही इज द इन्वेंटर ऑफ दैट मिठाई. बट उसके जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स थे दे वर ऑलरेडी प्रेजेंट. आज अगर किसी ने टेलीविजन बनाया, किसी ने रेडियो बनाया, ये वेव्स ऑलरेडी प्रेजेंट थी. यस और नो? आज किसी ने कुछ भी बनाया है, दैट इंग्रेडिएंट्स वर ऑलरेडी प्रेजेंट. इसका मतलब प्लानिंग ऑलरेडी थी. यस और नो? किसने रॉ मटेरियल बनाया अभी तक? आज अगर A.R. रहमान ने भी म्यूजिक बनाई है तो सुर प्रेजेंट थे. आप अंडरस्टैंड करो, अगर सुर भी किसने बनाए, शब्द प्रेजेंट थे. एंड नोबडी नोज द ओरिजिन. सो हर चीज जो है वी आर ओनली असेंबलिंग. वी आर ओनली असेंबलिंग एवरीथिंग एंड एंजॉयिंग द गेम. ऑल इंग्रेडिएंट इज प्रेजेंट. ये आइंस्टीन का सेंटेंस था. टुडे इफ यू वांट टू मेक एन एप्पल पाई फ्रॉम द स्क्रैच, if you want to make an apple pie from the scratch, you will have to reinvent the universe. आप एप्पल के लिए भी तो पेड़ लेने जाओगे ना, पेड़ क्रिएट करने जाओगे.
You can't. So understand कि ये यूनिवर्स का पूरा डिजाइन है. आप जिस काम के लिए आए हो उसका इंग्रेडिएंट ऑलरेडी प्रेजेंट है. आपको केवल रियलाइज करना है, उसको निकालना है, उसको जोड़ के क्रिएट करना है और अपना नाम का ठप्पा लगा के जीना है. So you have come basically to experience. You are more than, you have got huge potential, immense potential. And understand, even after you live your being, उसके बाद भी आप शांत नहीं बैठ सकते. Even after you become evolved, self-realized, उसके बाद भी आपका कार्य बंद नहीं होता. उसके बाद आप अपने जैसे पूरा ग्रुप बनाते हो, who spread it, who create it, who work on it, who evolve it. आज जो मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने अगर जीरो डिस्कवर किया था, after that he didn't stop. After that जीरो के बाद कितने नंबर्स हो गए, कंप्यूटर्स बन गए, सुपर कंप्यूटर्स बन गए. Nothing stops because life doesn't stop. Life doesn't stop. So today यूनिवर्स उन्हीं को सपोर्ट करती है जो कर्म प्रायान लोग होते हैं, वो एक्टिव पीपल हु वर्क. यू कैन नॉट स्टे स्टैग्नेंट. एवरीबॉडी वर्क्स. पर एक होता है फिजिकल वर्किंग, एक होता है मेंटल वर्किंग, एक होता है सेंसरी वर्किंग, और एक होता है बीइंग. एज अ बीइंग यू हैव गॉट द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड यू वर्क द फास्टेस्ट एज अ बीइंग. सो यू आर बोर्न फॉर दैट. यूनिवर्स लाइक्स यू आर मोर. आज मिठाई वाला एक मिठाई नहीं बेचता. Yes or no? आप जाकर एक या दो मिठाई खरीद के लाते हो, पर कितना बड़ा स्प्रेड होता है. यूनिवर्स लव्स स्प्रेड. इट लाइक्स इनफाइनाइट. आप मिठाई जाओगे इतनी सारी, कलर्स मतलब इनफाइनाइट. Yes or no? नाम से तो प्राइमरी 7 कलर्स ही हैं, पर जब उनको कंबाइन करोगे तो इनफाइनाइट कलर्स बनते हैं. Yes or no? ग्रीन के ही करीब पता नहीं कितने 100 शेड्स बन जाते हैं. Yes or no? लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, पैरेट ग्रीन, बॉटल ग्रीन, हर तरह की ग्रीन्स बन सकती है. तो अंडरस्टैंड यूनिवर्स ओनली लाइक्स इनफाइनाइट. कलर्स होंगे इनफाइनाइट, परफ्यूम्स होंगे इनफाइनाइट, यस, टेस्ट होंगे, खाना इनफाइनाइट, आप जो देखते हो सीनरीज इनफाइनाइट, आप जो चीजें टच और फील करते हो, मटेरियल फील करते हो इनफाइनाइट, म्यूजिक एंड सुर इनफाइनाइट. आज इस दुनिया में एवरीथिंग हैज टू बी इनफाइनाइट. यूनिवर्स लव्स ओनली दैट. Only that. There is no limit. कोई भी चीज यूनिवर्स doesn't want anything जिसका लिमिट. तो कोई भी चीज अगर बनती है उससे बेहतर हो सकती है, उससे भी बड़ी हो सकती है. आपको लगेगा I have achieved. No, you are more. You have to achieve more, then more, then more. आज आपने कुछ भी क्रिएट किया, उसके ऊपर भी कुछ क्रिएट होगा, उसके ऊपर भी. आज जैसे रुद्राक्ष में, because I have done a lot of research on रुद्राक्ष. रुद्राक्ष में I did research from 1 to 21 मुखी. 21 मुखी के बाद I was not able to do any research. मेरी जो पावर थी, capability of doing research, it was taken away. और 21 मुखी के बाद I was told to stop. But universe never stopped after 21 मुखी. Today there are रुद्राक्ष. Today I own 43 मुखी. तो रुद्राक्ष में भी भगवान ने कहा I don't want to stop at only 21. He doesn't want anything to stop. Even numbers stop नहीं होते. Infinite के बाद पता नहीं कितने numbers. वो भी दोनों तरफ माइनस में. तो रुद्राक्ष में भी हर साल ना हमें लगता है कि बस रुद्राक्ष, पहले हमें लगा 27 मुखी तक, ओ आई गॉट 27, मैंने कहा बस आई गॉट द मैक्सिमम. फिर नेक्स्ट ईयर आ गया 30, फिर 38, इस साल मेरे को 43. तो यूनिवर्स वांट्स टू शो, एंड व्हाटएवर रिसर्च आई हैव डन, समवन एल्स विल कम मे बी आफ्टर फ्यू इयर्स टू डू फर्दर रिसर्च एंड विल स्टडी अबाउट द अदर रुद्राक्ष. समवन विल कम टू एक्सपैंड द स्टडी मोर. तो ये रिसर्च, एवरीथिंग ग्रोस. कोई भी चीज एंड नहीं होती है यूनिवर्स में. कोई भी चीज का अंत नहीं है. और ये भी सोच लो कि अगर आपका मोक्ष भी हो गया, लाइफ पर्पस भी रियलाइज हो गया, उसके बाद भी आपको काम करना पड़ेगा टू मेक इट मोर एंड मोर. यू माइट नॉट हैव अ फिजिकल बॉडी, बट यू विल नीड टू मेक अदर पीपल डू मोर एंड मोर. क्योंकि आज क्या है कि लॉट ऑफ सिचुएशंस एंड पीपल एंड things you are trying to control in your life, or you are being controlled by them, right? And basically why you are being controlled by them, or why you are controlling them, somewhere you think it is your responsibility, somewhere you think that if I remove this they will go out of control and I will start having losses, problems, etc. The situation will go out of control. It's a fear. Yes or no? We have to understand the universe is manifesting the perfect environment for you at every time. Yes or no? Universe perfect चीज आपको देता है, perfect tools देता है. We have to trust those tools.
If you don't trust the tools will remain like inert objects. आज अगर आप अपने अराउंड अपने बच्चों को ट्रस्ट करो, अपने स्पाउस को ट्रस्ट करो, अपने एम्प्लॉयज को ट्रस्ट करो, अपने कस्टमर्स को ट्रस्ट करो और आपने कंट्रोल लाइंस अगर हटा दी तो दे विल इवॉल्व टू देयर नेचुरल स्टेट. एट द सेम टाइम आपका स्ट्रेस चला जाएगा, आपका फ्रस्ट्रेशन, आपका हेल्पलेसनेस, आपकी नेगेटिविटी चली जाएगी व्हेन यू लीव द कंट्रोल लाइंस. बिकॉज द मोमेंट यू लीव द कंट्रोल लाइंस it automatically will become a partnership, or you don't have to make it a partnership, it will become a partnership. और partnership में क्या होता है? What is the trait of a partnership? पहले ये समझना चाहिए. Partnership का मतलब है number 1 trust. Second, I will do my part and I know you will do your part. I will not force you. I will not control you. I will not belittle you to do your part. I will believe and trust that you will do your part. Today all of us want to do our part in the partnership. Yes or no? If you want the partnership right, it has got a meaning in our life. So the moment you take everything like a partnership, yes, they do their part, you do your part. And then you have to communicate. You have to talk. Sometimes you have to be very strong also. Partnership का मतलब नहीं है you will sit like this. You have to take action. Yes, you have to take action. So what question you were asking me in the break? That if there is a partnership and these people are doing wrong, what should I do? Should I just open my heart with trust? I will say you should open your heart with trust, but use communication and your power to corner them and bring the situation in your control. Manipur has to be strong and you have to get the work done. Either you work or you are out, I'll get another partnership. Partnership में release the fear of losing the partnership also. Get a new partnership also, because partnership में छोड़ना वरना बहुत easy रहता है. You can get a new partnership also. You can use your power to modify, to change. Yes, and basically it is only love and trust. Most of the times it's a problem of trust that partnership don't work. It's trust. But we have to understand if from our side we trust, automatically they will also trust. In partnership like relationships, we can't leave the partners, right? But we have to understand. In every partnership, we have a power. We do have a power. It could be power of love. It could be power of society. There is a kind of power, and we can use the power to change the person, or to change the situation in our favor. We can do it. There are many methods. Many times people get stuck up in emotions, and that is why they are not able to get the thing done. You should have trust also, communication also, convincing power also. You have to use all these tactics and power also, external legal help also if required, right? You have to use all that Sam, Naam, Dandu, Bhed and get the thing working in your favor. It will only work when it is a partnership. If it was kind of responsibility and then you start feeling guilty, oh, it is my relationship, I cannot do this, I cannot do this, then it won't. Today, why you have so many thoughts in your mind? Because there are so many fears. जैसे डर होता है ना, आप कैसे देखते हो इधर इधर. So today, why you are going in the past and why you are going in the future? Because of fears. Spiritual language में we call everything is a fear. So till you don't come out of every single fear, you cannot realize your natural self. जैसे natural self को कैसे समझोगे? जैसे प्याज होता है ना, प्याज के छिलके उतारते रहोगे. एक समय लगेगा छिलके खत्म ही नहीं हो रहे. But finally you will realize कि जो सेंटर में बचता है तो कुछ नहीं है, वैक्यूम है. That is you. Finally, you are nothing. Finally, you have to understand that you are nothing. So to realize that you are nothing, you have to take away everything that you think you are something. तो इसलिए जो है spiritual approach होता है हमेशा opposite होता है. It's a destruction process. तभी शिव is called the destroyer, because जो शिव है, he makes you realize who you are. आपने मंत्र सुना होगा, शिवोहम, मैं शिव हूँ. So finally everyone becomes Shiv. You don't become Brahma, you don't become Vishnu, you become Shiv. But understand that when we say we are nothing, you have to understand आपका वजूद कुछ नहीं है. जो आपका वजूद होता है, finally what you are an intelligent consciousness. But जो आप अपना वजूद सोचते हो कि भाई I am a physical self, or I am a role play, or I am one who enjoys the pleasure and pain,
Actually, you are none of these vajood. You are just an intelligent consciousness. So that consciousness has come to evolve, has come to realize you are more. To realize that consciousness, you have to realize, you have to release every single definition of yours. Only then you can connect to that consciousness. So this is the meaning of that. Something like, कैसे मैं as simple way में समझा सकती हूँ. Suppose I give you, you want to paint. Okay, you want to paint. I give you one small paper to paint. आप उस पेपर में ड्रॉ करोगे. फिर I give you a bigger book to paint. You'll paint there. Then I give you a canvas to paint. आप उस पे पेंट करोगे. मैंने कैनवस ही हटा दिया तो क्या करूँ? When you remove the canvas only, the whole world is available for you to paint. So then you become unlimited, and when you become unlimited, there is no vajood left. Your vajood is only till there are things which are limited. Yes? जैसे मैं पूछूंगी what is the vajood of infinite? Infinite कितना है? हाथ से दिखाओ, ज़्यादा, बहुत कम. Infinite कैसे दिखाओगे? You can't show like this also, you can't show like this also. तो जब आप infinite हो जाते हो, you lose vajood. Because you can't define, there's nothing to define. Another way I can explain is, suppose you look at the world, okay? Suppose you look at the world, so you are able to look at different parts of the world, right? You are able to look at the trees, the plants, the minerals, the people. You are able to look, right? So आप सबका वजूद बता सकते हो. But if you become the world, when you become the world, there is no वजूद. So self-realization is you become the world, you become everything. When you become everything, there is no वजूद left. किसको define करोगे? कुछ है ही नहीं define करने के लिए, क्योंकि define तभी कर सकते हो when there is an opposite with you. जैसे एक law होता है ना, you can see one train going. इसकी speed तभी देख सकते हो when there is something slower or something stationary. आप दो train जा रही है same speed पे, can you measure the speed of the train? You have to have a comparison, right? So when you become everything, there is no वजूद left. स्पिरिचुअलिटी को जो है ऐसे समझना पड़ता है, अपने अंदर उतारना पड़ता है. और God gives us many tools, right? Understand that you are not left alone to do all this. Today, universe wants you to realize that self, but today it has created this by a pair of opposites. क्योंकि आज we are not come, we cannot experience till there are a pair of opposites. क्या आप आज एक गेम खेल सकते हो? Can you play a football game without an opponent? क्या आप गेम खेल सकते हो कि हमें जीतना है, बस हमें गोल्स बनाना है? Will you enjoy the game? Yes? You have to have two parties, एक जीतने वाला और एक हारने वाला. So you cannot experience till there are no opposite poles. So today the universe is made with this opposite poles. और जैसे जैसे आप ये opposite poles का दूसरा वाला पार्ट देखते जाओगे, ये पार्ट भी हटता जाएगा. और जैसे जैसे हटाते जाओगे, you realize your truth. But universe sends you many tools. इतनी सारी books देता है, इतने सारे speakers देता है, जो आपको समझाए how to walk on the right path. It gives you so many remedies. Like Rudraksha is a very powerful remedy. When you wear Rudraksha on body, आपके बहुत सारे fears release हो जाते हैं just by wearing them on the body. Because Rudraksh represents the frequency of the gods. आज अगर आप 14 मुखी पहनोगे, you will call Hanuman to be with you. If you wear 19 mukhi, you call Narayana to be with you. So when you wear Rudraksha on the body, those gods' energies are with you. Similarly, gemstones. When you wear those gemstones, those planets are with you. I think we are all soul families. You know, because I always say कि speaker का कोई वजूद नहीं है अगर audience नहीं है तो. मैं आती आपके लिए, अगर आप लोग नहीं आए तो मेरा क्या वजूद? So today आज एक singer का वजूद नहीं है अगर audience नहीं है. और आज कोई भी दुनिया के अचीवर का वजूद नहीं है अगर कोई सामने अप्रिशिएट करने वाला, सुनने वाला ना हो. So for that I thank you all also helping me live my life.